Hello and welcome to Diya Academy. Let us begin the second lecture of chapter 6 Electromagnetic Induction. In today's lecture we will discuss about motional EMF. Motional EMF. So the name itself suggests that some kind of motion will be there which will be responsible for induction of EMF, right? In the previous lecture, we had seen that due to some combination of magnetism and some velocity, we can induce electricity. Right? So that is called as electromagnetic induction. So first EMF will be induced, and due to as a result of that, some current will be flowing. Right? So what will be the reason for induction of an EMF? That will be called as, that will be a motion of what? Motion of a conductor. So what exactly would be the situation? That there will be a magnetic field, uniform magnetic field, which is right now we can consider that it is prevailing inward to the board. ये बोर्ड में अंदर की डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको क्रॉस करके शो किया गया है. Now in this magnetic field there is a conductor, metallic rod is there. Okay, now this rod will be moved in the rightward direction, so velocity of the rod will be this. Okay, so V is inward, and V is in the, if we can say that it is in the positive x axis. So we can say that V and B both are perpendicular to each other. बराबर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ है और V जो है वो इस तरफ है, दोनों perpendicular है एक दूसरे से. Now conductor is moving in the magnetic field perpendicular to the magnetic field. So we can say that the free electrons which are inside the conductor is what? It is actually a treasure of free electrons, right? So all the free electrons are also moving perpendicular to the magnetic field. We can say that, right? So here we can say that electrons are having perpendicular motion. Free electrons are moving perpendicularly to the magnetic field, right? So now from the fourth chapter we know that there will be force which will be exerted on any charge when it is traveling perpendicular or into a magnetic field. जब भी magnetic field के अंदर कोई चार्ज जो है वो मोशन कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा. लॉरेंस फोर्स में हमने देखा था, बराबर. तो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय these free electrons. How much will be that force? That force Fm will be equals to, or F we can say, Fm will be equals to Q V cross B. ओके, F की डायरेक्शन कौन सी होगी वो भी देखते हैं. पहले मैग्नीट्यूड क्या आएगा? Q V क्रॉस B. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं then it will be Q V B sin angle between B and D. We have already said that B and D are perpendicular to each other, so that will be sin 90. Sin 90 is 1. The force will be Q V B. Now here we have electron which is traveling. अब सबसे पहले सपोज के कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसके ऊपर ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता वो देखते हैं, बराबर. तो उसकी डायरेक्शन, F की डायरेक्शन कौन सी होगी? V क्रॉस B करके जो प्लेन बनेगा, द प्लेन विच इज कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उन दोनों के परपेंडिकुलरली जो होगा उस डायरेक्शन में F की डायरेक्शन होगी, बराबर. उस डायरेक्शन में F होगा. सो सी V is like this and B is like this, बराबर. ये B ऐसे है और B ऐसे है. तो you have to rotate a right hand screw from V
टू बी, V से B की डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाना है। नाउ V इज लाइक दिस, सो V टू B वो ऐसे कुछ रोटेट होगा। स्क्रू है ना, स्क्रू, उसको राइट हैंड स्क्रू, उसको हमें V से B अगर रोटेट किया, सो व्हाट विल हैपन के वो स्क्रू होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल एडवांस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन आई अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर है, अगर वो यहां से ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसको उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बराबर? सबसे पहले V क्रॉस B ही करना है, V क्रॉस B, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस E आएगा, तो F की जो डायरेक्शन है उसमें आगे माइनस लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर? ये कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। सो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, all the electrons in the final orbit will get separated, मतलब वो ग्रेजुअली होता जाएगा, टर्न बाय टर्न सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेजुअली अपने पेरेंट एटम में से लीव करके फिर यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव चार्ज मतलब आयंस जो बचे वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, बराबर? सो नाउ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोलैरिटी फॉर्म हो गए ना, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो ये अब क्या फॉर्म हो गया, एक सेल फॉर्म हो गया। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, बराबर? दिस विल कंटिन्यू अंटिल, अब इनके ऊपर ना फोर्स लग रहा होगा, ये एक इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट हो जाएगा ना, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा उस फील्ड की वजह से, और ये मैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों जब तक बैलेंस में नहीं आ जाएंगे, टिल देन दिस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वन एंड विल कंटिन्यू, बराबर? उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो कंडीशन आ जाएगी उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इन stable equilibrium or till stable equilibrium is attained, Fm and Fe will become equal. Now they won't, no electron will experience any kind of net force, right? So Fm क्या है, Q V B जितना है, Fe कितना होगा, ये Q E जितना होगा, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन लिख सकती हूँ E E, बराबर? एनीवेज क्यू क्यू जो है या ई लिखा तो वो कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू ई, बट वी नो दैट ई इक्वल्स टू वी डी। अगर मैं इसकी लेंथ ऑफ द रॉड इज एल ले लूं तो यहाँ पर V इंटू एल हो जाएगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो फॉर्म हुआ उसको अगर V नाम बोल दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V इंटू एल होगा, बराबर? तो यहाँ पर मैं B इक्वल्स टू V इंटू एल, ये V बाय एल, बराबर? सो नाउ V इक्वल्स टू, ये जो B आया या एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा V और L यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू ED लिखते हैं हम लोग, बराबर? वेद लिखते हैं, तो E इक्वल्स टू V बाई D, यहाँ पर D को हमने क्या लिया है, L लिया है, सो V बाई L, दैट डिनोमिनेटर्स L will get multiplied with it। यहाँ पर ये मैं V की जगह पर एप्सिलॉन लिख दूं, एप्सिलॉन ईएमएफ है ना, इसलिए यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लिख लिया, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू BVL, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये, तो ये ईएमएफ जो हुआ वो इतना आया। तो रॉड के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ has got generated due to its motion। अगर ये यहाँ पर स्टेडी ही पड़ा होता
तो स्टेडी होता तो नो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स, बराबर, ये वाला फोर्स वो एक्सपीरियंस ही नहीं करता। सो नो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक्यूमुलेशन एंड्स के ऊपर होगा वो कभी हो नहीं पाएगा, करेक्ट। इसलिए फॉर्म कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होगी नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होगा नहीं, बराबर। तो ये हो गया फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ के लिए। नाउ दिस कैन आल्सो बी सीन इन अनदर वे। उसके लिए क्या किया गया है, जो टेक्स्ट बुक में भी अलग से जो दिया है उसमें ऐसे दिया है कि लेट अस टेक अ कॉन्फ़िगरेशन वेयर यू हैव अ वायर रिम, बराबर, ये रिम ले ली, एंड ओवर दैट यू आर मेकिंग दिस रॉड, जो ये रॉड लिया ना वही रॉड, इट विल बी अलाउड टू स्लाइड ऑन द रिम। इसको यहाँ पर माउंट करके फिर ये स्लाइड कर सके वैसे रखा है इसके ऊपर, बराबर। सपोज के लेंथ अभी हमने एल ली है तो यहाँ पर भी हम लोग एल ही बता देते हैं, लेंथ ऑफ दैट रॉड इज एल, बराबर। एंड द एंटायर अरेंजमेंट हैज बीन केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एज इट हैड बीन केप्ट अर्लियर आल्सो, इसके जैसे ही हम लोग इसको रख रहे हैं। नाउ a string will be attached with this rod, इधर एक string है, बराबर, और string से यहाँ पर इसको खींच सकते हैं, this can slide over this rim, बराबर। तो यहाँ पर इसको इस तरफ V जो है इसको इस तरफ फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, ये एक्सपीरियंस करेगा इस तरफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये तो सीधा सीधा जाएगा तो V इस तरफ होगा, बराबर। So to suppose कि after some time it reaches to this position, बराबर, और ये जो डिस्टेंस था earlier स्लाइड करने से पहले वो सपोज के x था। Now in that some distance has got increased, let us say that distance is dx, dx जितना यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, बराबर। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, सी एरिया कवर्ड बाय दिस लूप, ये भी क्या है, कंडक्टर है, ये भी क्या है, एक रॉड है, कंडक्टिंग मटेरियल है। सो बाय दिस क्लोज्ड लूप, ये वाले क्लोज्ड लूप से कुछ इतना सा फ्लक्स जो है वो कवर हुआ है, बराबर। नाउ ऑन स्लाइडिंग दिस रॉड द फ्लक्स लिंक हैज गॉट नाउ चेंज्ड, अब ये सारी फील्ड लाइंस है वो सब कवर हो गई। So whenever there is change in flux, Faraday's law ने क्या बताया, Faraday ने क्या बताया, Faraday's law में हमने देखा है कि change in flux leads to generation or induction of EMF, induced EMF, electromagnetic EMF जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन हमें मिलेगा, so induced EMF एप्सिलॉन equals to d phi by dt, राइट। फाई जो है वो फाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फाई का फॉर्मूला बी ए, फाई बार। सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी बी ए बाय dt, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, बराबर। तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, बचा क्या, डी ए बाय dt। In place of A we can write, क्या चेंज हो रहा है इसमें, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर, रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। अब इसमें ये x जो है वो वेरिएबल है, इसलिए हमें b और l को बाहर लेना चाहिए, ये दोनों कांस्टेंट्स हो गए, बचा क्या, dx by dt। dx by dt means velocity, चेंज इन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना चेंज होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना, बराबर। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी एल बी और बी वी एल, द सेम फॉर्मूला कैन बी अटेन्ड इन सम अनदर वे आल्सो, बराबर। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी वी एल। ये कब मोशनल ईएमएफ कहलाएगा, जब कोई ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के ट्रैवल की वजह से, कंडक्टर के मोशन की वजह से इंड्यूस हो रही है तो, बराबर। अब ये एक थियोरी है, जो एक थियोरी आपको पूछी जा सकती है कि मोशनल ईएमएफ है उसका फॉर्मूला डिराइव करो,
तो फॉर्मूला डिराइव करने में के लिए आप ये या ये चीज दोनों में से कोई भी एक वे जो है वो ले सकते हो। दिस वुड बी द प्रेफर्ड वन, बराबर। अब अगर साथ में आपको ये पूछे कि हाउ डज मोशनल ईएमएफ, ये मोशनल ईएमएफ के लिए टर्मिनल्स यहाँ पर कैसे फॉर्म होते हैं, कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर अब बैटरी की तरह पर कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन किया वो सब आपको शो करना है कि उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना जो ईएमएफ है वो फॉर्म हुआ होगा। एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर से पूछा जा सकता है, वो है रोटेटिंग। अब यहाँ पर तो ये कैसे थी, लीनियर मोशन थी, बराबर। मोशन कोई भी टाइप की हो उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, बराबर। तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा हो, वैसे ये ईएमएफ जो है वो उसी केस में होगा जब इसकी मोशन होगी, जो कंडक्टर है उसकी मूवमेंट ऐसे ही होनी चाहिए जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा हो, बराबर। अब फ्लक्स चेंज करने का एक और तरीका भी है जिसमें रोटेशनल मोशन भी करवाई जाए, बराबर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेडिंग आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड in a uniform magnetic field, बराबर। तो इस केस में हम लोग अगेन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, फिर उस फील्ड के अंदर जैसे बताया वैसे एक रॉड जो है ये रॉड ले लिया और उसको इस पॉइंट के अबाउट, ये पिवोट पॉइंट हो गया इसका, तो अबाउट दिस पिवोट पॉइंट इट विल बी अलाउड टू रोटेट। इसको फोर्स एक्चुअली दिया जाएगा, तो इसकी एंगुलर वो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे होगी, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, बराबर। v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो इसकी लेंथ जो है वो हमने l जितनी ले ली है, बराबर, l जितनी है। तो r ओमेगा जो लेते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा, वो हो जाएगा l ओमेगा अगर हमें v लेना है तो, बराबर ना। अब इसमें मैं अलग अलग जो पोर्शन है ना, इनका डिस्प्लेसमेंट या इनकी वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी, वो सब अलग अलग आएगी यहाँ पर, बराबर। ये इतना सा पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट उसी टाइम पे ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, बराबर ना। इसलिए हम एंटायर रॉड जो है उसके लिए उसकी मोशन पूरी एक साथ में नहीं देखेंगे, रादर देन वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट, इतना सा छोटा सा एलिमेंट इसका कंसीडर करेंगे और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे, बराबर। बहुत छोटा सा एलिमेंट है और स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए उसकी मोशन जो है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस से कि ये जो है इसकी लेंथ है dx जितनी एंड इट इज अबाउट एट x डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो भी x जितना है, पिवोट पॉइंट से x जितने डिस्टेंस के ऊपर ये स्मॉल एलिमेंट रखा हुआ है, बराबर। तो वी कैन कंसीडर दैट small element, so small elemental rod can be considered as moving linearly in the मैग्नेटिक फील्ड। सी छोटा सा ही पोर्शन है, वो छोटा सा पोर्शन है और थोड़े टाइम के बाद वो कहाँ गया होगा, यहाँ पर पहुंचा होगा, बराबर। ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पर, इसको जूम करके पूरा बड़ा सा दिखाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसकी जो मोशन है उसको हम लोग लीनियर समझ सकते हैं। नाउ फॉर लीनियर मोशन वी नो कि कितना ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा, बराबर। तो ये ऐसे गया तो एप्सिलॉन, इसकी डायरेक्शन हम लोग v की ये बता सकते हैं। तो इसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो एप्सिलॉन होगा
वो बी वी एल होगा, बराबर। अगर ये स्मॉल पोर्शन है तो ये एंटायर ईएमएफ मुझे नहीं देगा, ये पूरे रॉड के लिए स्मॉल ईएमएफ जो है वही देगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए बी एप्सिलॉन, बराबर। और ये भी मुझे स्मॉल वैल्यू देगा, तो इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी सी आएगी? अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं बी वी एल, बराबर। डी, बी जो है वो बी को कांस्टेंट ले लिया, फिर V और L, V की जगह पर मैंने बताया था कि हम लोग क्या लिख सकते हैं R ओमेगा। R कितना है यहाँ पर L। अब उसमें से हम लोग कितने सा पोर्शन ले रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है dx जितनी है, बराबर। तो ओमेगा इंटू dx, ओमेगा इंटू dx होगा। और लेंथ, लेंथ इसकी कितनी है, सॉरी ओमेगा इंटू ये रेडियस इसकी x आ गई, ओमेगा इंटू एक्स, ये बी की जगह पर लिखा। और एल जो है वो एल कितना, तो इसकी रेडियस जितना, बराबर ना, और इसकी जितना लेंथ कितनी है डी एक्स जितना, तो ये डी एक्स आएगा, बराबर। तो डी ऑफ ऑल ऑफ दिस, शुरू में सपोज के ऐसे लिख दिया। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है वो ले ले, बी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट। यहाँ पर dx लिख लिया, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, d एप्सिलॉन इक्वल्स टू x dx, बराबर। अब इसका मुझे d एप्सिलॉन मुझे सिर्फ इतने पार्ट के लिए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए पूरे रॉड के अक्रॉस ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कितना है वो फाइंड करना है, barabar। तो ये स्मॉल पोर्शन के लिए जो ईएमएफ मिला उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, बराबर। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एप्सिलॉन, but d epsilon is b omega x dx. b and omega are constant. Integration of x is x square by 2, बराबर, equals to b omega by 2। और अब लिमिट्स जो है वो लिमिट्स क्या से क्या आएगी, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर x, x कहाँ से कहाँ तक का, इधर 0 लेंथ है और यहाँ तक पहुंचेंगे तब x हो जाएगा l। So limits will be from 0 to L, 0 to L. So L square minus 0 square, upper limit minus lower limit, 2 को पहले से बाहर लिख लिया, तो ये बनेगा b ओमेगा L square by 2 एप्सिलॉन, बराबर। b ओमेगा L square, या तो रेडियस आपको समझ में आता है तो रेडियस आप लिख सकते हैं r, बराबर। b ओमेगा r स्क्वायर, जो भी रेडियस होगी ना, ये रेडियस हो गई ना, ये रोटेटिंग पाथ की, तो उसकी रेडियस आ गई। और यू कैन से इट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो एप्सिलॉन फॉर अ रोटेटिंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, जो कि यहाँ पर स्ट्रेट अगर मोशन हो रही थी तो v लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में वो आ रहा था b v l, ठीक है। चलो, तो मोशनल ईएमएफ के लिए ये सारी चीजें हो गई, एकदम इजी टॉपिक है, ये लिख लो आप लोग।